Good morning, friends. Myself Kedar Badeka. Today, I am taking the lecture number 35 for the subject which is the manufacturing technology. In the previous series of the lecture, we are discussing about the foundry technology, and basically, we are in the last series of the lectures, we discussed about the different patent allowances. So, in today's lecture, our discussion, which is now focus on the our patent portion, was complete, right? We discussed about the basic need of the patents, functions of the patents, different characteristics of the patents, different types of the patents. Then we discussed about the different patent allowances, what kind of the material which is needed to manufacturing the patents. So our patent portions was complete, and from today we start the discussions on the molding. So how the mold is to be prepared, and what are the molding materials which is to be required for making the molds. So let's start the discussions over the molding and molding materials. So we start our discussions with the molding materials. The choice of molding material is based on their processing properties. यानी जो मोल्डिंग मटेरियल का जो सिलेक्शंस होता है, वो सिलेक्शंस जो है वो डिपेंड्स करता है उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. So first, which is we can make the mold from the sand. So from the sand, a green sand, which is the mixtures of the sand, clay, water and some organic additives, is a most commonly used a types of molding material. So सबसे ज़्यादा तौर पे जो है वो सैंड में से जो है वो मोल्ड जो है वो प्रिपेयर होता है, और इस पूरे टाइप्स के अंदर ग्रीन सैंड जो बनाया जाता है विद द मिक्सचर्स ऑफ द सैंड, क्ले, वाटर एंड सम ऑर्गेनिक एडिटिव्स. The second types of the mold, which is the metal and alloy mold, are used in मल्टीपल यूज़ मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस. अगर आपको एक ही मोल्ड को बार बार यूज़ करना है तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस के लिए, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के लिए आप जो है वो मल्टीपल यूज़ मोल्ड कास्टिंग के लिए है. जो अगर आपको एक ही टाइप के जो है वो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस कंडीशंस के अंदर आप मेटल और अलॉयज़ में से जो है वो मोल्ड प्रिपेयर कर सकते हैं. द नेक्स्ट विच इज़ द प्लास्टर, a plaster of Paris, or we can say as a calcium sulfates or gypsum, with a various additions of improve the green strength, dry strength and permeabilities. So plaster of Paris और gypsum का यूज़ करके आप उसमें कुछ एडिटिव्स ऐड करके आप उनकी जो है वो स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी ड्राई स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसकी परमियाबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करके इसमें से आप मोल्ड बना सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ द सिरामिक. A ceramic mold are similar to a plaster of molds. जो ceramic mold रहता है वो plaster mold जैसा ही mold रहता है, except that the mold can withstand the higher melting point metals. जो हायर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो मेटल सिरामिक का मोल्ड रहता है, वो बेसिकली उसका एक मैं पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एप्लीकेशंस जो है जिनका हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले जो अगर मटेरियल है उसको आपको कास्ट करना है, उस कंडीशंस के अंदर जो है वो सिरामिक जो है उसमें से बना हुआ जो मोल्ड है वो बहुत अच्छी तरह से आप उसको वहाँ पे उस एप्लीकेशंस के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ दी ग्रेफाइट. नेक्स्ट मटेरियल विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मोल्ड विच इज़ द ग्रेफाइट. ए पाउडर्ड ग्रेफाइट इज कैन बी कंबाइंड विद द सीमेंट. जो पाउडर रहता है ग्रेफाइट पाउडर विच इज़ कंबाइंड विद द सीमेंट, वो सीमेंट के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है, उसमें स्टार्च एंड वाटर ऐड करके विच इज़ कॉम्पैक्टेड अराउंड द पेटन. आप उसको उसका सारा पूरा बाइंडिंग जो है वो बना के उसको पेटन के इर्द गिर्द जो है वो लगाया जाता है, और इस तरीके से जो है वो मोल्ड जो है वो ग्रेफाइट के मदद से जो है उसको बनाया जाता है. Next options or a next material which will be used for the mold making, which is the rubber. Next, so several types of artificial elastomers can be compounded in a liquid forms and poured over
a patents to form a semi-rigid mold. Several types of the आर्टिफिशियल इलास्टोमर्स, यानी ये जो है कुछ ऐसे तरीके का रबर है जो एक आर्टिफिशियल रबर जैसे होता है, उस ऐसा रबर जो है वो मोल्ड बनाने के लिए जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, विच इज़ ए सेमी रिजिड टाइप्स ऑफ द मोल्ड, यानी इसमें से जो मोल्ड बनेगा वो एक सेमी रिजिड टाइप का जो है वो मोल्ड इसमें से आप बना सकते हैं. अ रबर मोल्ड आर फ्लेक्सिबल एंड यूज्ड फॉर इंटीग्रेट पैटर्न्स और अ शेप शेल कास्टिंग ऑफ अ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल. आप उसको जो है वो इंटीग्रेट पैटर्न अगर इसमें से आपको बनाना है, इस इंटीग्रेट पैटर्न को यूज़ करके आपको अगर कोई मोल्ड बनाना है तो उस एप्लीकेशंस के लिए जो है वो रबर एक बहुत बढ़िया जो है वो आपके साथ एक ऑप्शंस निकल के आता है. वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, आप इंटीग्रेट शेप के लिए यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा एक एडवांटेज इस मटेरियल के साथ ये निकल के आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर अ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स. आप लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हैं. ये ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन के साथ उस कंडीशन के लिए आपके पास अवेलेबल रहता है. सो हमने डिफरेंट जो है वो मोल्डिंग मटेरियल्स जो है वो डिस्कस किए. हमने सैंड डिस्कस किया, मेटल और अलॉयज़ का ऑप्शंस हमने देखा, प्लास्टर देखा, सिरामिक देखा, ग्रेफाइट और रबर. ये सारे मटेरियल को यूज़ करते हुए आप जो है वो मोल्ड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके कुछ बेनिफिट्स हमने स्टडी किए, उसके कुछ एडवांटेजेस हमने और डिसएडवांटेजेस और कुछ एक्स्ट्रा उसके जो स्टार पॉइंट है वो भी हमने इस मोल्डिंग मटेरियल सेक्शंस के अंदर हमने डिस्कस किए हैं. अब मोल्डिंग सैंड के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं. अब हमारा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो रहा है मोल्डिंग सैंड के ऊपर. तो सैंड जो है वो एक बहुत वायबल ऑप्शन है जिसमें से मोल्ड जो है वो प्रिपेयर्ड होता है, राइट. ये सबको पता है और एक बहुत चीपेस्ट ऑप्शंस भी इसको गिना जाता है मोल्डिंग सैंड. अगर हम लोग सैंड को यूज़ करते हैं, सैंड में वाटर, क्ले और सम एडिटिव्स, ऑर्गेनिक एडिटिव्स मिक्स करके हम लोग एक मोल्ड बनाते हैं, तो ऐसा मोल्ड जो है वो ज़्यादा तौर पे आपने एप्लीकेशंस फील्ड के अंदर देखा होगा. पर अगर जब भी आप सैंड को यूज़ करते हुए आप मोल्ड बनाते हैं, उस सैंड कुछ अलग तरीके की वो सैंड होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मोल्डिंग सैंड के अंदर रहती. उस प्रॉपर्टीज़ को आपको पहले समझना बहुत बोल सकते कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड विच इज़ द रिफ्लेक्टरीनेस, सेकेंड विच इज़ द कोहेसिवनेस, third which is the permeability, fourth which is the collapsibility, fifth which is the plasticity, sixth which is the dry strength, seventh which is the hot strength, eighth which is the adhesiveness. तो ये बहुत important जो है वो प्रॉपर्टीज़ मोल्डिंग सैंड के अंदर रहती है. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ये क्वेश्चंस एक साल छोड़ के एक साल हर बार जो है वो आपके एग्ज़ाम के पेपर के अंदर जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर हर बार ये पूछा जाता है कि डिस्कस दी मोल्डिंग सैंड प्रॉपर्टीज़, राइट. या फिर ऐसा भी कुछ होता है कि आपको 4 मार्क के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम दे दे इसमें से, और वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करनी रहती है. सो रिफ्लेक्टरीनेस, कोहेसिवनेस, परमिएबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ and adhesiveness. These are the 8 main property of the molding sand, and some other properties like as a cheap, easily available. कुछ ऐसे कुछ उसके अदर रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें ना तो ये क्यों यूज़ होता है, तो ये चीप है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, लो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है इनका, रीयूजेबल है. आप उस रेत के बने हुए मोल्ड को आप जैसे आपका एप्लीकेशन ख़त्म हो गया तो आप उसको तोड़ दीजिए, उस सैंड को अलग कर दीजिए, उसको वॉश कर दीजिए, राइट, उसका पूरा ट्रीटमेंट कर दीजिए और उसी सैंड को आप दूसरे मोल्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते. दैट इज़ द रीयूजेबल ऑप्शंस. देन इट इज़ अ केमिकली इनर्ट एंड नॉन स्टिकिंग टू द कास्टिंग सरफेस. ये जो है वो कास्टिंग सरफेस इसके साथ जो है वो चिपकता नहीं है. तो आपका जो मशीनिंग वाला जो एक दिक्कत रहती है, वो मशीनिंग वाली जो दिक्कत है वो यहाँ से ईजिली आप
उसको ओवरकम कर सकते हैं. So these are the some of the great options which is comes with the molding sand. Now let's start. We more focus on the discussions of the properties of the molding sands. So first we start our discussions with the reflectoriness. So reflectoriness is the ability of the molding sands to withstand the higher temperature of the melts so that it does not fuse or melt. रिफ्लेक्टरीनेस जो है वो एक ऐसी सैंड की एक प्रॉपर्टी है जो सैंड हायर टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होता और हायर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फ्यूज़ नहीं होता. मेल्ट यानी वेपराइज नहीं हो जाता है और फ्यूज़ नहीं हो जाता है, जल नहीं जाता है. ऐसी अगर सैंड के अंदर प्रॉपर्टी है तो उसको रिफ्लेक्टरीनेस जो है वो बोला जाता है. द प्रेजेंस ऑफ द सैंड इम्पार्ट्स दिस प्रॉपर्टी टू द मोल्डिंग सैंड. ये प्रॉपर्टी का प्रेजेंस होना बहुत अच्छी एक चीज़ मानी जाती है. हायर द प्योरिंग टेम्परेचर हायर विल बी रिक्वायर्ड्स रिफ्लेक्टरीनेस एंड वाइस वर्सा. अगर आप कुछ ऐसे मटेरियल को कास्ट करना चाहते हैं जिसका मोल्डिंग टेम्परेचर जो है, प्योरिंग टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, तो आपको वैसे मटेरियल को प्योर करने के लिए या फिर उसके लिए मोल्ड बना लेके ऐसा सैंड को यूज़ करना पड़ेगा जिसका रिफ्लेक्टरीनेस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. यानी ये दोनों चीज़ जो है वो वाइस वर्सा हो जाती है. द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज इज रिटार्ड्स द इन रिफ्रैक्टरीनेस. नाउ द रिफ्रैक्टरीनेस इज ऑल्सो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सैंड. यानी आप जैसे ही उस सैंड का साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ जो है उसकी रिफ्लेक्टरीनेस जो है वो बढ़ती जाएंगी. एंड कोर्सर द साइज विच इज़ हायर विल बी द रिफ्लेक्टरीनेस. जैसे आप बड़ी वाली जो है वो सैंड जिसका साइज पार्टिकल साइज जो है वो सैंड पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा है, कोर्सर्स है, तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टरीनेस जो है वो देता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड इज मेजर्ड बाय द सेंटर पॉइंट रेदर दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैंड. आप उसको जो है वो सेंटर पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैंड, इससे जो है वो आप मेज़र कर सकते हो. सो नेक्स्ट विच इज़ द परमियाबिलिटी. अब परमियाबिलिटी इज द एबिलिटी टू परमिट द गैसेज टू एक्सेप्ट थ्रू इट. परमियाबिलिटी यानी सैंड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अंदर अगर गैस जो है फॉर्म होता है, उस गैस को जो है, उस गैसेस को जो है वो उस मोल्ड में से बाहर निकलने दे. अगर ऐसी प्रॉपर्टी सैंड के अंदर है तो उसको परमियाबिलिटी जो है वो बोला जाता है. परमियाबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट इज अलाउ द गैसेस इनसाइड द मोल्ड ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशंस ऑफ द कास्टिंग टू एस्केप टू दी सराउंडिंग. यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जो मोल्ड के अंदर अगर गैसेस जनरेट हुए हैं ड्यूरिंग द प्योरिंग तो उसको, उस गैसेस को ईजिली जो है वो मोल्ड में से बाहर निकलने दे. ऐसी प्रॉपर्टीज़ को परमियाबिलिटी जो है वो बोला जाता है. परमियाबिलिटी इज द फंक्शंस ऑफ द साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल अमाउंट एंड अ टाइप ऑफ द क्ले और द बॉन्डिंग एजेंट्स. परमियाबिलिटी जो है वो उसके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस साइज के सैंड पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का आपका क्ले और बॉन्डिंग एजेंट्स आपने यूज़ किया है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इम्पैक्ट प्रेशर्स कितना है, उसके ऊपर उसकी परमियाबिलिटी जो है वो डिपेंड्स करती है मोल्ड के ऊपर. द मोल्ड इज मस्ट बी इनफ पोरस टू परमिट द गैसेस टू एस्केप एंड अवॉइड द डिफेक्ट ड्यू टू द एंट्रप्टिस द गैसेस. मोल्ड जो है वो इतना पोरस होना चाहिए कि जो अंदर बने हुए गैस को बाहर निकलने दे, या फिर अगर कोई गैसेस है तो उसके थ्रू जो है वो डिफेक्ट ना जनरेट हो, ऐसा वो डिफेक्ट को अवॉइड कर सके, ऐसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. द रेट इन मिलीमीटर पर मिनट एट विच द एयर विल पास थ्रू द सैंड. 1 मिलीमीटर में से कितनी एयर पास हो सकती है under the standard conditions of the pressure is used which is the index of the permeability. इस तरह से जो है वो सैंड की जो है वो परमियाबिलिटी जो है वो मेज़र की जाती है. So this is the figure which is the effect of the grain size of the permeability. If we are using the finer of the grains, there is a low
इज द परमियाबिलिटी, उसकी परमियाबिलिटी कम हो जाती है. द वाटर कंटेंट्स और द परमियाबिलिटी विद द एडिशंस ऑफ द वाटर देयर इज अ इंक्रीज इन द परमियाबिलिटी अप टू द लिमिट. जैसे आप उसके अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो उसकी परमियाबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने के कुछ रिजल्ट्स जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर मिले हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑफ द सैंड विच इज द कोलैप्सिबिलिटीज. Now what is the collapsibilities? A collapsibility is the ability of disintegrations of the cohesiveness mold as a result of the metal shrinkage. A collapsibility is the ability of the disintegrations of the cohesiveness of the mold. यानी एक तरीके से मोल्ड के साथ ना चिपकना as a result of the metal shrinkage. अगर मेटल के अंदर श्रिंकेज होता है तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि ईजिली जो है वो डिसइंटीग्रेशंस हो पाए आपका, राइट. जो सैंड है वो कास्ट सरफेस के साथ ना चिपके, ऐसी और कंडीशंस ऐसे क्यों जनरेट होती है? ड्यू टू दी मेटल श्रिंकेज. अगर मेटल जो है वो श्रिंक होता है तो फिर वो मोल्ड के साइड जो है वो खिसकेगा. पर अगर सैंड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जैसे कोलैप्सिबिलिटी, जो डिसइंटीग्रेशंस हो जाता है, विच इज द कोहेसिव मोल्ड्स. A collapsibility is generally obtained by adding organic materials. कैसे ऑब्टेन होती है? अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ऐड करेंगे मोल्ड के अंदर, जब आप मोल्ड बनाते हैं, जैसे हो गया आपका सेल्यूलोज हो गया, सेरेल हो गया, आप ऐसी चीज़ अगर ऐड करेंगे तो फिर मोल्डिंग सैंड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जनरेट होती है दैट बर्न आउट व्हेन दिस आर एक्सपोज टू दी हॉट मेटल्स. अगर वो चीज़ भी ऐसी होती है कि जैसे सेल्यूलोज हो गया, तो सेल्यूलोज जो है ना वो आप हॉट मेटल को जैसे ही उसके अंदर डालोगे तो फिर वो सेल्यूलोज जो है वो बर्न आउट हो जाता है. द कंबक्शन विच इज रिड्यूस बोथ द वॉल्यूम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द रिटेनिंग सैंड. द कंबक्शन विच इज रिड्यूस्ड बोथ, वो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ जो है वो रिटेनिंग स्ट्रेंथ का कम कर देता है. दस ए कोलैप्सिबिलिटी इज अलाउ द सैंड्स मोल्ड टू कोलैप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन. यानी कोलैप्सिबिलिटी से क्या होता है कि एक मोल्डिंग सैंड के अंदर ऐसी एक प्रॉपर्टी, जैसे आपने हॉट मोल्टेन मेटल उसके अंदर प्योर किया, तो जैसे ही वो सॉलिडिफाइड करेगा ना, तो सॉलिडिफाइड के जस्ट बाद वो मोल्ड जो है वो खुद कोलैप्स कर जाएगा. जैसे उसके अंदर सेल्यूलोज कंटेंट जो है वो छोड़ देगा तो फिर वो सैंड का मोल्ड खुद अपने आप जो है वो ब्रेक हो जाएगा of the casting as well as a free contractions of the cast material. The lack of the collapsibility is hinders contractions of the cast material which is results in a tear or crack in the casting. और इसके एडवर्स इफेक्ट के थ्रू जो है वो कुछ टीयर्स या फिर क्रैक जो है वो कास्टिंग के अंदर जो है वो डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट विच इज़ दी प्लास्टिसिटी. अब प्लास्टिसिटी क्या है? ए प्लास्टिसिटी इज नोन एज द फ्लोवेबिलिटी. प्लास्टिसिटी को जो है वो फ्लोवेबिलिटी जो है वो भी बोला जाता है. ए प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड ड्यू टू विच इट फ्लोज अराउंड एंड ओवर द पैटर्न्स टू एक्वायर द डिजायर्ड शेप ड्यूरिंग द मोल्डिंग. ए प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड. प्लास्टिसिटी जो है वो मोल्डिंग सैंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू ड्यू टू विच इट फ्लो अराउंड ओवर द पैटर्न्स टू एक्वायर अ डिजायर्ड शेप ड्यूरिंग द मोल्डिंग. जिसके थ्रू जो है वो एक मोल्ड जो है वो डिजायर्ड शेप जो है वो कन्वर्ट कर सकता है. मोल्डिंग सैंड इज शुड बी प्लास्टिक सो दैट इट फ्लोज एंड एक्वायर अ डिजायर्ड शेप्स अंडर द प्रेशर्स. सो मोल्डिंग सैंड इज शुड बी प्लास्टिक, वो प्लास्टिक होना चाहिए जिसके थ्रू जो है इट कैन फ्लो एंड एक्वायर द डिजायर्ड शेप, वो इजीली फ्लो हो पाए और एक डिजायर्ड शेप जो है वो अचीव कर पाए. ए फ्लोवेबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड इज इंक्रीज. ए फ्लोवेबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड इज इंक्रीजेज एज ए क्ले एंड वाटर कंटेंट इज इंक्रीजेज. फ्लोवेबिलिटी जो है वो कैसे इंक्रीज होती है? जैसे हम लोग जो है इसके अंदर क्ले कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो इसके साथ जो है वो उसकी फ्लोवेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ जो है वो होने लगती है.
राइट। नेक्स्ट विच इज द कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस किसको बोला जाता है? ए कोहेसिवनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिटेन ए गिवन शेप्स, राइट। कोहेसिवनेस जो है वो एक इसको डिफाइन किया जाता है कि एबिलिटी टू रिटेन द गिवन शेप्स, वो जो शेप जो है इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि जो गिवन शेप है वो रिटेन कर पाए, उस शेप को रिटेन करने वाली एबिलिटी को जो है वो कोहेसिवनेस जो है वो बोला जाता है। Thus, due to the cohesiveness, a ram molding sand particles are bonded together once the pattern is withdrawn from the mold. जैसे आप पेटर्न को मोल्ड से विड्रॉ कर देते हो तो उसी कोहेसिवनेस से जो है वो मोल्डिंग सैंड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सैंड पार्टिकल एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। कोहेसिवनेस इज ऑब्टेन्ड बाय कोटिंग अ सैंड ग्रेन्स विथ अ क्ले that become a cohesive when it is moistures. cohesiveness किस तरीके से हम पा सकते हैं? तब जब हम कोटिंग सैंड के अंदर जो है वो क्ले अगर ऐड करने के तो फिर वो मॉइस्चर कंटेंट के साथ वो कोहेसिव हो जाएगा। कोहेसिवनेस ऑफ द सैंड इज एक्सेलरेटेड बाय amount of bonding materials which is present such as a clay in the presence of the moistures. तो हमने वही चीज जो है वो डिस्कस किया। It may be a green strength, dry strength and hot strength. तो इस वजह से जो है वो एक एप्लीकेशंस निकल के आएंगी, वो ग्रीन स्ट्रेंथ हो सकता है, ड्राई स्ट्रेंथ हो सकता है और इसका हॉट स्ट्रेंथ जो है वो हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज द ग्रीन स्ट्रेंथ। अ ग्रीन मीन्स कंटेनिंग द वाटर। ग्रीन क्या होता है? जिसके अंदर पानी है उसको ग्रीन बोला जाएगा। वाइल a strength which is referred to the compressive strength of the molding strength. अब strength क्या रिप्रेजेंट करता है कि मोल्ड के अंदर कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अ ग्रीन स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन सैंड टू रिटेन द शेप ऑफ द मोल्ड। Thus, a green strength is referred to a cohesiveness strength of the molding sand which is containing the moistures. A green strength is referred to, वो क्यों रेफर किया जाता है? तो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड विच इज कंटेनिंग द मॉइस्चर, जिसके अंदर मॉइस्चर है। एडिक्वेट ग्रीन स्ट्रेंथ एंड टफनेस इज ए मस्ट फॉर द मेकिंग, राइट। मोल्ड बनाने के लिए जो है वो एडिक्वेट ग्रीन स्ट्रेंथ और टफनेस होना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड द हैंडलिंग ऑफ द मोल्ड ऑफ द मॉइस्चर सैंड, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आपको हैंडल करना है तो उसको हैंडल करने के लिए भी जो है वो ग्रीन स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट विच इज द ड्राई स्ट्रेंथ। व्हेन द मॉइस्चर इज इन द मोल्डिंग सैंड इज कंप्लीटली एक्सपेल्ड, इट इज कॉल्ड एज अ ड्राई सैंड। अगर उस सैंड में से जरा सा भी जो है वो मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो उसको ड्राई सैंड बोला जाएगा। ए ड्राई स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्राई सैंड। ड्राई स्ट्रेंथ जो है वो ड्राई सैंड की एक एबिलिटी है टू रिटेन द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी, जिससे मोल्ड कैविटी का शेप जो है वो रिटेन लगा रहता है, एज वेल एज विथस्टैंड द मेटलोस्टैटिक फोर्सेस। और इसी वजह से जो है आप जब मेटल को, लिक्विड मेटल को प्योर करते हैं तब जो मेटलोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं वो फोर्सेस को जो है वो उसके अंदर एक एबिलिटी कि उस फोर्सेस के अगेंस्ट में वो वहाँ पे खड़ा रह सकता है। तो ऐसी एक सैंड की एबिलिटी को ड्राई स्ट्रेंथ बोला जाता है। ए लैक ऑफ द ड्राई स्ट्रेंथ इज मे एनलार्ज द मोल्ड कैविटी owing to erosions and a wall movements due to the metallostatic pressures of the molten metals. Now the next and a last property of the molding sand, which is the hot strength. A hot strength is the ability of the sand to hold the shape of the mold cavity at the higher temperature of the sand. हॉट स्ट्रेंथ जो है वो सैंड की एक ऐसी एबिलिटी है जो हायर टेम्परेचर के ऊपर उस मोल्ड केविटी को जो है वो सस्टेन, उसके शेप को जो है वो सस्टेन कर पाए, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोल्टन मेटल्स इन द मोल्ड।
the curing of the malt, which is expels all the moisture contents which is present in the mold, and the heat of the malt which is increase the temperature of the molding sands to give the values. At this stage, the deformations of the sand is grains occurs to which may change the shapes of the mold cavity. So this is all about the properties of the molding sands and molding materials, right? So आज के lectures के अंदर हमने डिफरेंट मोल्डिंग मटेरियल्स, किस मटेरियल्स में से मोल्डिंग जो है मोल्ड जो है प्रिपेयर हो सकता है, और जब सैंड में से जो मोल्ड प्रिपेयर होता है तो मोल्डिंग सैंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों बनाना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसका यूएसपी है। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने उसकी 9 जो है वो प्रॉपर्टी, मोल्डिंग सैंड की 9 प्रॉपर्टी आज के लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस की है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स, these properties of the molding sand, you can ask your questions in the comment sections. I will definitely solve your queries into the next series of the lecture. So after watching this video lecture, you can also write your enrollment number into the comment sections, which will be counted as your online attendance. And you can also subscribe my channel, so which is also give the notifications to you of the next uploading video lectures. Thank you so much for watching this video lecture. Thank you so much.